welcome back to Unique Academy. In today's class, we are going to study a very important topic under Transfer of Property Act, Unit 2, Topics of Law. Today we are going to cover sale. The entire concept of sale, including the rights and liabilities of the seller as well as of the buyer, will be covered in today's class. So please pay attention and let's begin with the class. We are going to cover sale from second unit, Topics of Law. Sale. Now what do we mean by sale? Sale means a transfer of ownership of the property in exchange for a price under section 54 of Transfer of Property Act. Right. Now there are two main words used here. Firstly, ownership. ओनरशिप का मतलब क्या होता है? हमने इससे पहले भी पढ़ा था जब से हमने ये टॉपिक शुरू किया है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओनरशिप. बट व्हाट डू वी मीन बाय ओनरशिप? ओनरशिप मतलब राइट टू पोजेस समथिंग. अगर मैं ये कहती हूँ कि ये मेरी कार है तो मेरा हक है उस पर. ठीक है, मेरा टाइटलमेंट है, मैं ओनर हूँ उसकी. ओके, एंड द प्रॉपर्टी शुड बी एक्सचेंज्ड फॉर अ प्राइस. नाउ हियर you'll understand that price is money. Okay, it could be something else, but as per our law we are going to consider only money here as per the requirement of our subject right now. Seller is the person who transfer the property and buyer is the person whom the property is transferred. Very easy. Seller वो है जो बेच रहा है, buyer वो है जो खरीद रहा है, यानी जो पैसे दे रहा है in lieu of property. The consideration in a sale is usually money. Right? It is now being clarified कि consideration usually money होती है. Price usually in the terms of money होता है. Illustration: A sells his house for 2 lakh rupees to B. This is called sale. इसमें क्या हुआ? A का घर था और उसने कितने प्राइस पे, कितनी कंसिडरेशन पे, 2 लाख रुपए की कंसिडरेशन पे किसे बेच दिया? बी को. मतलब कि उसने अपना जो एंटाइटलमेंट था, जो उसका राइट टू ओनरशिप था, उसने वो कैसे शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया? बी को. दिस इज कॉल्ड सेल. हियर ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर. 2 लाख रुपीज इज द कंसिडरेशन विच इज मनी. राइट, इस केस में हमारी कंसिडरेशन क्या है? मनी है. फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स फॉर अ सेल टू बी वैलिड. नाउ दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच वी नीड टू make a valid sale. There should be two different parties, a seller and a buyer. Right? There are some things in this topic which you might feel like asking questions about, या फिर कुछ चीज़ें आपको लग सकता है कि इनकम्प्लीट है, बट वो सब कुछ हम आगे जब इसे पढ़ेंगे, इसे नहीं सॉरी, हम जो नेक्स्ट यूनिट पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर होगा. अभी हम लोग सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो आपके टॉपिक से यहाँ इस पॉइंट पर रेलेवेंट है. There should be two parties, the seller and buyer. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ही अपना घर अपने आप को बेच रही हूँ. नहीं, that's not possible. There need to be involvement of two parties. Both the parties should be competent to transfer. What do we mean by competent to transfer? हमने एक इसी उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसी यूनिट में, who are competent to make a transfer. One should be of lucid mind, sound mind. ठीक है, they should be above 18, they should be a major, they should not have any legal restriction on them. So वो सारे जो requirements हैं उनकी वो fulfill होनी चाहिए. They should be competent to transfer. The property to be transferred should be in existence. What do we mean by existence? मैं जो चीज़ मेरी नहीं है वो आपको नहीं बेच सकती. ठीक है, मैं जो अभी इस वक्त है नहीं वो आपको नहीं बेच सकती. ठीक है, सो थिंग्स शुड बी देन एंड देयर, इट शुड बी अंडर माई ओनरशिप, देन ओनली आई कैन ट्रांसफ़र यू, देन ओनली आई कैन सेल इट टू यू. मैं ये नहीं कह सकती कि जब कभी इंडियन ओशन पे प्लॉट्स बटेंगे तब मैं खरीदूंगा और वो मैं आपको 24 लाख रुपए पे बेचूंगा. अभी जो चीज़ है ही नहीं मैं वो कैसे बेच सकती हूँ? Consideration for the transfer should be money. Again, consideration should be money. There should be consideration first thing and then the consideration should be in monetary terms. Next point is the contract should be in accordance with law. What do we mean by in accordance with law? As per the requirements of law. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो अनलॉफुल हो. अगर आपको कहीं से भी आपकी प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है, आपको लॉ ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है सेल करने के लिए, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ,
आप उसे अडेयर करें, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनलॉफुल हो इन दैट कॉन्ट्रैक्ट. Rights and liability of buyer and seller. So firstly we'll study about sellers. Disclose defect of the property which is known to the seller and not known to the buyer. अगर आप जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है, जो सेल के लिए एक प्रॉपर्टी है, उसमें अगर कोई भी कमी है तो आपको वो सेलर को बिफोर हैंड बतानी है. ठीक है, अब मैं आपको अपनी कार सेल कर रही हूँ और मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि ये कार एक्चुअली चलती नहीं है. ठीक है, ये फैक्ट मुझे पता है, आपको नहीं पता है, तो आई शुड मेक इट क्लियर टू यू, आई शुड डिस्क्लोज इट टू यू. मुझे आपको पागल नहीं बनाना चाहिए. प्रोड्यूस टू द बायर ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटलशिप, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ओनरशिप रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर आप मुझे कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो आपको दिखानी है. ठीक है, और मेरा भी हक है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि भाई ये सब चीज़ें दो, दिखाओ. आंसर ऑल द क्वेश्चन पुट टू हिम बाय द बायर इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी. अगेन, जो भी क्वेश्चन पोटेंशियल बायर आपसे पूछ रहा है, आपको उन सबका जवाब देना है. ठीक है, मैं आपसे कार खरीदने आई हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ ये माइलेज क्या दे रही है, ये एवरेज क्या दे रही है, इसमें कौन सा लुब्रिकेशन यूज़ होता है, आपने इसकी लास्ट सर्विस कब करवाई थी, क्या इसका इंजन कभी खुला है नहीं खुला है, XYZ जो भी मेरी क्वेरीज है उसे आपको पूरा करना पड़ेगा. यू हैव टू आंसर ऑल माई क्वेश्चन. दिस इज अ लायबिलिटी ऑन यू. टेक केयर एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी and the documents of title between the date of contract and contract of sale and delivery of property. ठीक है, अब आप समझ रहे हैं यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये आपकी लाइबिलिटी है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद जब तक आप उसकी डिलीवरी नहीं दे देते चीज़ की, उस प्रॉपर्टी की, तब तक आपको उसका ध्यान रखना है. अब मैं आपसे घर खरीदती हूँ, आज हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर आप मुझे डिलीवरी पोजीशन देंगे 1 हफ्ते बाद. ऐसा नहीं करना है कि उस 1 हफ्ते में आपने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तोड़ दी, उस पर बुलडोज़र चलवा दिया और बोल दिया भाई हमें क्या पता, हम तो नहीं, हम तो बेच चुके. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. आपकी लाइबिलिटी उसे ध्यान से रखना. इंक्लूडिंग ऑल द टाइटल्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल. ठीक है, वो सब भी ध्यान से रखना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. bear all public charges and rent with regard to the property up to the date of sale. जब तक सेल नहीं हो जाती तब तक उस प्रॉपर्टी पे जो भी खर्चा होना है, उस चीज़ पे जो भी खर्चा होना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, अगर मैं आपसे कार लेने की बात कर रही हूँ और उसमें अभी कोई बहुत अर्जेंट, चाहे छोटा या बड़ा कोई भी चेंज होना है, ठीक है, कुछ इम्प्रूव होना है, कुछ भी होना है, इम्प्रूव तो नहीं कहूँगी मैं, पर कुछ भी होना है जो उसकी मस्ट क्विंटेसेंशियल है जो उस प्रॉपर्टी के लिए. ठीक है, वो चीज़ कौन भरेगा? आप भरेंगे भाई. अभी ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, मैंने पोजीशन लिया नहीं है, मेरे पास आया नहीं है, अभी डेट ऑफ सेल हुई नहीं है, वी हैव नॉट रीच टू डेट ऑफ सेल. तो कौन हैंडल करेगा ये सब कुछ? आप करेंगे. टू गिव बायर पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. अगेन दिस इज़ योर लाइबिलिटी. ऐसा नहीं है कि मैं ट्रांसफ़र करवा के बाहर निकली और आपकी गाड़ी गायब और आप बोल दो अरे क्या मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है. आपकी जिम्मेदारी है भैया उसे पोजीशन देना. ओके, अब राइट्स ऑफ सेलर, अभी हमने क्या पढ़े? लाइबिलिटीज ऑफ सेलर. बट कुछ हक भी होते हैं सेलर के, वो भी पढ़ेंगे अब हम. कलेक्ट द रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द डेट ऑफ ओनरशिप पासिस टू द बायर. जिस तरह से सेल होने तक उस प्रॉपर्टी पे होने वाले सारे खर्चे आपके हैं, उसी तरह से उस प्रॉपर्टी पे जो भी बेनिफिट होगा, राइट, जो भी बेनिफिट होगा जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, वो भी आपके हैं. अगर आपने वो घर किसी को किराए पे दे रखा है तो जिस दिन तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाती प्रॉपर्टी, उस दिन तक जो भी किराया आएगा वो आपका है. When ownership has passed on to the buyer from the seller before payment of full money, claim the amount from the buyer that is due to him. अगर बाई चांस भाई घर था 50 लाख का, आपने उससे बोला भाई ठीक है तुमने 40 लाख रुपए दे दिए, तुम पोजीशन ले लो, और उसके बाद वो आपको 10 लाख रुपए देने में आनाकानी करे, तो भाई आपका राइट है टू टेक दैट अमाउंट, क्लेम दैट अमाउंट. ठीक है, नो वन कैन डिनाई यू ऑफ दैट, ये भी आपका राइट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइबिलिटीज ऑफ बायर. जो खरीद रहा है उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी. Firstly, disclose to the seller any fact with regard to the property that will increase the value of the property that is known to him. अब भाई मेरा घर है, मैं हूँ सेलर, आप हैं बायर.
आपको पता है भाई प्रिया मैम के घर के नीचे सोने की खदान है, ठीक है, यहाँ पे सोना ही सोना है, ज़रा सा फर्श स्क्रैच करते ही ना यहाँ पे नीचे सोना ही सोना है, और आपको पता है इसकी वजह से ये कितना वैल्यूएबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आएँ और मुझे जब तक ये सेल ऑफ जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तब तक आप मुझे सब कुछ बताएं कि भैया ऐसा है, इस चक्कर में इस जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता, सोने वाला एग्जांपल तो इट वाज काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल, बट कई बार होता है कि बहुत प्रोमिनेंट जगह होती है जहाँ पे डेफिनेटली आने वाले 1 साल में 2 साल में ड्यू टू एनी रीज़न प्राइस हाइक हो सकता है, ठीक है, आपका एक्सट्रीम इंटरेस्ट हो सकता है उस जगह में, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए। ऑल्दो देयर आर पीपल who malpractice and avoid disclosing such details, but this is your liability being a buyer. Next point is pay to the seller purchase money at the time of completing the sale. अब लॉ क्या कहता है कि भैया जैसे ही सेल कंप्लीट हो रही है उसी टाइम पे पूरे पैसे देना भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप पोजीशन ले लो और बोल दे कि यार पैसे मैं बाद में दे दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। To bear any loss that arises from the destruction, injury or decrease in value of the property after the ownership has passed to the buyer. अब भैया मैंने तुम्हें सही सलामत घर दिया था, 50 लाख रुपए लिए थे, बिल्कुल सही हालत में घर था, ठीक है, उसके 2 दिन बाद ही अर्थक्वेक आता है और घर ढह जाता है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सेलर का कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब जो भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा वैल्यू में वो सब आपका है, ओके। टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट दैट बिकम्स पेबल आफ्टर द ओनरशिप पास टू द बायर। अब ये क्या कह रहे हैं कि बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ये पॉइंट, कि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है वैसे ही उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चार्जेस, रेंट, टैक्स एट्सेट्रा है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। भाई जब ओनरशिप मेरी थी तो मैं उसे बियर कर रही थी, अब ओनरशिप आपकी है, आप बियर करेंगे उससे रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। नाउ अगेन लाइबिलिटी के साथ साथ ऑफ कोर्स यू हैव सम राइट्स ऑल्सो। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ बायर? आफ्टर द ओनरशिप हैज पास टू द बायर परफॉर्म एनी लॉफुल एक्शन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द रेंट एंड प्रॉफिट विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी। अब भैया आप एक बार प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने, तो उसमें कोई भी चेंजेस कराना, उसे इस तरह से यूज़ करना या डेवलप करना कि उससे जो आपके बेनिफिट्स है वो मैक्सिमम हो जाए, इज़ अप टू यू। अगर मैंने आपसे कार खरीदी, उसके बाद में उसके इंजन को इस तरह से रिपेयर कराती हूँ कि उसका माइलेज, एवरेज सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाए, उसकी लुक्स बहुत इंप्रूव हो जाए, दैट इज़ अप टू मी। अगर मैंने आपसे एक घर खरीदा और उसे मैं फिर बाद में इस तरह से मॉडिफाई करती हूँ तो कि उससे जो आने वाला रेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो वो मेरा हक है, मैं ऐसे चेंजेस कर सकती हूँ, नो वन कैन स्टॉप मी। Where the buyer has paid the purchase money, he can compel the seller for registration of sale, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे भी आपको बायर ने पूरे अमाउंट दे दिया है तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल से मना नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये राइट हो जाता है बायर का कि वो आपको कंपेल भी कर सकता है कि भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल होना ही होना चाहिए। Now we are going to quickly see this case study. It's very interesting. You will like it. In Madam Pillai versus Bhadrakali, the plaintiff, Bhadrakali case, the plaintiff being the first wife made a claim for maintenance to her husband. अब यहाँ कौन है? एक लेडी ने अपने हस्बैंड को से क्लेम मांगा अपनी मेंटेनेंस का। The husband orally transferred his land of the value of 100 टू द प्लेंटिफ। अब जो लेडी थी उसके हस्बैंड ने ओरली, वर्बली कह दिया कि ठीक है, मेरी वो लैंड जिसकी कीमत उस टाइम पे 100 रुपये थी, ठीक है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। लेटर ही एग्जीक्यूटेड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट फॉर द सेम प्रॉपर्टी। और बाद में उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट रेडी करवाया और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अभी जो इनिशियली उन्होंने अपनी वाइफ को बोला था कि ठीक है ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, वो वर्बल था, ठीक है, जो उन्होंने एज कंपनसेशन या फिर एज मेंटेनेंस अपनी वाइफ को दिया था वो वर्बली दिया था। बाद में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली रेडी कर लिया प्रॉपर सेल के लिए, ठीक है, और उन्होंने किसी और के फेवर में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। द प्लेंटिफ इनिशिएटेड अ सूट स्टेटिंग दैट द
transfer was initially made in her favor and the subsequent sale to the defendant was not valid. अब जब लेडी को पता चला तो उन्होंने एक केस फाइल किया, उन्होंने इनिशिएट किया एक सूट कि जो प्रॉपर्टी है इन द क्वेश्चन दैट वाज इनिशियली ट्रांसफर्ड टू मी, ठीक है, एंड क्योंकि वो अब मेरे को ट्रांसफ़र हो चुकी है, अब उस पर राइट ओनरशिप मेरी है, तो दिस subsequent transfer with the help of the instrument is not valid. ये ठीक नहीं है, ये valid ही नहीं है. The defendant stated that the transfer in the favor of the plaintiff failed for want of the registered instrument. अब भाई जिसने खरीदी थी बाद में वो कहता है कि नहीं जो इनिशियल सेल थी वो तो वैलिड ही नहीं है ना. क्यों? क्योंकि उसमें कोई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं था. The court held that the plaintiff acquired a title by way of oral transfer and she is entitled to the property though the instrument of sale was not registered. अब कोर्ट ने क्या कहा कि ऑल्दो जो पहला से जो ट्रांसफ़र हुआ था पहला वो ओरल था, तब भी जो हक था वो लेडी का ही रहेगा, फर्स्ट वाइफ का ही रहेगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड ना होने की वजह से वो नल और वॉइड नहीं हो जाती है, ठीक है. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप अपने लॉ में आगे पढ़ेंगे. दीज आर काइंड ऑफ एडवांस टॉपिक्स एंड एडवांस वोकैब. बट यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी ने ओरली भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर आपको समझने की ये ज़रूरत है कि अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल है वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी बायर के राइट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. अब हम यहाँ पे दोबारा से इस वाले पॉइंट पे आएंगे और इसे समझेंगे थोड़ा सा. Where the buyer has paid the purchase money, he can compel the seller. Why is this term used compel? क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के भी बायर के राइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. But still, if the buyer wants, then he can compel the seller to get it registered, and the seller cannot deny this demand. Okay. With this, we have completed the entire sale topic. Please go through this and try to read it once from your book. If you have